Hi mascots, how are you doing? Today is an important lecture. I'm here specially to talk about one of the pillars of the NEET examination. Because the syllabus is so vast and it is absolutely impossible to cover the syllabus, revise it completely in the last few days, and therefore notes become the most important part of your preparation. Most of the students read everything many times. That means they've gone through their MCQ books, they've gone through their notes, they've gone through their coaching modules many times, at least 3-4 times. But still at the time of the examination, they get confused, they don't remember things, they end up doing silly mistakes and they end up marking the wrong option because they have not been able to revise. If you're not able to revise, what should you do? The only thing that all toppers and all teachers tell you is make notes. There have been 1000 videos, even I've taken videos on how to make notes. Go check out that video. Or you can just write, how to make topper notes from Vani ma'am, and you will get that super amazing video जिसमें मैंने detail में बताया है notes कैसे बनाते हैं. But what are the common mistakes that some of you do while making notes? And these common mistakes often lead to erroneous notes, or these common mistakes often lead to problems where you are unable to make notes properly. What is it? Number one, टीचर बोलता जा रहा है फटाफट आपके नोट्स बनते जा रहे हैं. That is wrong. That is exactly not how notes have to be made. Writing without listening. Right? So आप सुन रहे हो, you're like a passive person. You have to listen, you have to internalize, you have to paraphrase it. What do I mean by paraphrasing it? In your own language, with those words which you will remember, with the examples which are coming to your mind. That is how you make personal notes, and that is how notes really help you. So writing without listening, without internalizing is the biggest problem. Second biggest problem that you do is noting down everything. टीचर बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कॉपी में देखते जा रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, लिखते जा रहे हैं. That is worst thing that you can do. Noting down everything is the worst possible thing. Like the worst possible. No, you have to condense your notes. You have to write down the important points. You have to make them small. You have to break it down into mnemonics. You have to break it down into easily rememberable things. You have to break it down into tables, columns, short forms. Writing down everything will make your notes very big, and these big notes will be impossible to read during your exams. Then, not being topic specific. What do I mean by not being topic specific? Is आपने क्या किया? You just like random notes लिख लिए. कितनी बार होता है इस कॉपी के वहाँ स्क्रिबल कर लिए, उसके नोट्स यहाँ लिख लिए, and then जब टाइम आता है, you don't really know कि आपके नोट्स कहाँ पे, because आपने सारी चीजों को randomly mix किया हुआ है. कहीं पर आप अटक गए, आपको रिवाइज करना है, कहीं किसी पार्ट का या टॉपिक का टेस्ट है, आपको रिवाइज करना है. You really don't know what to do, where to look, because you've not really written them out in an order and specifically. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नोट्स लिखते रहे, पर उनसे कभी पढ़ाई नहीं की. अगर उनसे पढ़ाई नहीं की तो उनकी उतनी साइकिल्स नहीं हुई. आपको पता है हमेशा लोगों के नोट्स में रंग बिरंगे पेन्स होते हैं, कट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, उसके ऊपर स्टिकर्स चिपकाए होते हैं, कोने में कुछ और लिखा होता है. बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट योर रिविजन साइकिल इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू रिव्यू योर नोट्स, आपको याद रहेगा. इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी. आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि कब किस समय पे क्या आएगा नोट्स में. राइट? एंड जब आप एग्जाम में फंस गए, सामने कोई क्वेश्चन आया, यू हैव टू आंसर, देन योर मेमोरी विल टेल यू, अरे यार ये तो उस पेज के उस कोने में था. दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर. आपने नोट्स बना लिए, बहुत बेहतरीन बना लिए, रंग बिरंगे पेन से बना लिए, खूब सारे बुक्स मिक्स करके बना लिए, छोटे बना लिए, पर आपने पढ़ा ही नहीं, उनको रिवाइज ही नहीं किया. इट अमाउंट्स टू जीरो वेस्ट. Right? अब how to avoid these common note taking mistakes is something I'm going to be telling you. सबसे पहले be prepared. What do you mean by be prepared to take notes? ये बहुत ही सिंपल चीज है, be prepared to take notes. इसका बड़ा सिंपल उदाहरण मैं आपको अभी क्लास में देने वाली हूँ. What do you mean by be prepared to take notes? बेटा पेन के साथ बैठो, पेंसिल के साथ बैठो, रंग बिरंगे स्टिकर्स के साथ बैठो, पेजेस के साथ बैठो, कोई नोट कॉपी बना के बैठो. राइट? जब आप टीचर हो रहा है उसको इंटरनलाइज करो, उसको लिखो, उसका एसेंस निकालो, उसका निचोड़ निकालो, फिर वो नोट्स में लिखो और स्ट्रक्चर बनाओ. डेफिनेशन लिखो, अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिख दो, अच्छा नोटेबल साइंटिस्ट लिख दो, बुक्स लिख दो, एकदम स्ट्रक्चर दो ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी तो आए दैट यू आर सॉल्विंग दीस नोट्स एंड यू विल बी एबल टू डू देम. एंड कीप reviewing them again and again and again. These are certain very basic things which will help you. Remember that this is your one-stop destination for all things biology. यहीं पे आना है. ये चैनल आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बायो में.
हमारे स्टूडेंट्स 360 और 360 लेकर आए हैं लास्ट ईयर 2021 नीट में, एंड दिस टाइम 2022 आपकी बारी है। एक और चीज बताकर जाती हूं मैं, हमारे पास इतनी अमेजिंग क्लासेस हैं, सारी लाइव। यस, लाइव। आप मेरी क्लासेस में लाइव कैमरा अनकैम करके अनम्यूट होकर मुझसे बात कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास ऐसी क्लासेस है जिसमें इन क्लास और आफ्टर क्लास अनलिमिटेड डाउट रेजोल्यूशन है। हमारे पास ऐसी क्लासेस है जहां पर हजारों टेस्ट देकर आप अपने को एनालाइज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास ऐसी क्लासेस है जहां क्लास के अलावा हजारों माइक्रो कोर्सेज हैं। दैट मींस अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में वीक हो तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस लाइव क्लासेस में दूसरे टीचर्स के भी जाकर थाउजेंड्स ऑफ टाइम देख सकते हो। और ये सारी चीजों का फायदा आपको लेना चाहिए, क्योंकि नीट एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आप करना चाहते हो ये सब, तो सी व्हाट आई हैव फॉर यू, मैं आपको दिखाना चाहती हूं मेरे पास आप लोगों के लिए क्या है। आप लेक्चर के नीचे चले जाओ, किसी भी लेक्चर के नीचे चले जाओ, यहां पर आपको लिंक्स मिलेंगे। नीट क्रैश कोर्स का लिंक, नीट के 2 इयर्स का लिंक, क्लास 11 सीबीएसई, क्लास 12 सीबीएसई टर्म 2 का लिंक। 11th वालों 12th जाने से पहले 11th रिवाइज कर लो, वरना 12th में टेंशन हो जाएगी। पूरा टर्म 2 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। 12th वालों बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, और नीट 2022 वालों ये रहा आपका क्रैश कोर्स का लिंक। एक बार करके दिखाती हूं, इट इज द सेम फॉर एवरीथिंग, राइट। देखिए, आपके क्रैश कोर्सेज है। 8 फेब से मैं नया क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूं, अप्रैल तक आपके क्रैश कोर्स चलेंगे। द बेस्ट टीचर्स विल टीच यू। आपको सिर्फ अपने डाउट की फोटो अपलोड करनी है और डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आपके टेस्ट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, डाउट सॉल्विंग होगी, लाइव लेक्चर्स होंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक सपोर्ट किया जाएगा, बट डोंट बाय इट विदाउट माय कोड वीडी नीट। अगर इसके बिना लिया तो फिर आप बिल्कुल भी ऑफर नहीं ले पाओगे। अपने को रजिस्टर कर लो गूगल पे जाकर, राइट। एक बार आपने अपने को रजिस्टर कर लिया, उसके बाद वीडी नीट कोड लगा लीजिए और रेगुलर क्लासेस में आ जाइए। एक बार दिखा देती हूँ, ये सब कुछ है। 11 सीबीएसई टर्म 2 नीट के 2 साल का कोर्स 11th वालों जल्दी से ले लो, अगले साल नीट बिफोर द क्लासेस गेट फुल। 12th वाले क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इज देयर, चॉइस इज योर्स। पर खूब मेहनत करो, आगे बढ़ते चलो। टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय गाइस।